Welcome to my channel again. Myself Ovik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, just we are going to cover some questions from the application of differentiation chapter for a class 12 and for JEE main and advanced level exams. Okay, so both the classes and both the sections will be covered in one lecture because this type of questions are very important for the board as well as for entrance also. So actually in this video just we are going to solve that type of some different level questions. And I think that's in the last lectures, in the regular classes, I think some questions were solved, and in the JEE main advanced classes also, there's some questions were solved from the same chapter as well, from the same concept, rate of measures, application of differentiation. Okay, differentiation का application आपको करना है, that means use करना है, कहाँ पर आप differentiation use कर सकते हैं, ठीक है, daily activities में या फिर कोई natural work में, जैसे आप डिफरेंशिएशन कैसे यूज कर सकते हैं वो आप इस चैप्टर में डिस्कस होगा। आप समझ सकते हैं कि ये जगह पर डिफरेंशिएशन यूज होता है। तो दैट मींस आई थिंक यू विल गेट द आइडिया वेयर दिस डिफरेंशिएशन विल बी यूज्ड एंड जस्ट यू विल गेट दैट मींस यू विल कम टू नो दैट इन एवरी एक्टिविटीज, इन डेली एक्टिविटीज, आई थिंक दिस डिफरेंशिएशन चैप्टर आई थिंक विल बी यूज्ड। ओके, सो just take your pen and paper and let's start the first question. Okay, just write the first question. The volume of the cube is increasing. The volume of the cube is increasing at a constant rate. Okay, just write the first question. The volume of a cube. The volume of a cube is increasing. Is increasing at a constant rate. Prove that the increases of surface area varies inversely as the length of the age of cube. That means एक क्यूब है, क्यूब का साइड्स का लेंथ तो आपको पता ही होगा, है कि नहीं? तो एज्यूम करेंगे, कुछ भी यहां पर गिवन नहीं है, दैट मींस एज्यूम करके ही हम लोग को यहां पर काम चलाना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम दैट लेट एज ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एक्स। सो हियर द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग, दैट मींस द वॉल्यूम इंक्रीजिंग रेट नीड्स टू बी फाउंड। ओके, एट ए कांस्टेंट रेट नो नीड टू बी फाउंड बिकॉज द कांस्टेंट रेट इज गिवन हियर। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v से डिनोट करेंगे और इधर x क्यूब है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वॉल्यूम का रेट यहां पर dv बाई dt कुछ भी यहां पर गिवन नहीं है, दैट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में ही आपको यहां पर रेट निकालना है, ठीक है। सो dv बाई dt इक्वल्स टू कांस्टेंट रेट, दैट मींस k इज गिवन, dv बाई dt इक्वल्स टू k इज गिवन। ओके, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट the increasing rate of the surface area varies inversely as the length of the edge of the cube. That means you need to find the increasing rate of the surface area indirectly. This is the question actually. Okay, here dv by dt means what? Here ddt of v equals to x cube. Okay, v means what? X cube, and that's why in place of b you can put ddt of x cube. Okay, equals to k, not k cube, equals to k. That means 3x square dx by dt equals to k. This is the structure and it is your equation number 1. Equation number 2. Okay, now the surface area, we know that S equals to
S इक्वल्स टू सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का, एक क्यूब का सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। ओके, सो ds by dt equals to 6 into ddt of x square. That means 6 twice x dx by dt. That means 12 into x dx by dt. Okay. Now, if you find x into dx by dt value from here, then what will be there? Just write 12 into just x dx by dt का वैल्यू क्या होगा यहां से? k by 3x, I think k by 3x. That means 4 हो गया। ओके, सो दैट मीन्स 4k by x। ds by dt का आंसर क्या निकला यहां पर? 4k by s हो गया। तो यहां पर आपको क्या प्रूफ करना है कि सरफेस एरिया का जो इंक्रीजिंग रेट है वो वेरी करता है किसके साथ? द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, इंक्रीजेस ऑफ द सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली। ओके, इनवर्सली वेरीज करता है किसके साथ? द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। आज यहां पर क्यूब का, यहां पर एज का लेंथ हमने क्या लिया था? x लिया था। तो यहां पर सो ds by dt क्या निकला? 4k by x। तो 4k तो ये कांस्टेंट है, 4k क्या है? कांस्टेंट है ना। तो जब हम लोग कांस्टेंट को ओमिट करते हैं या फिर एक्सक्लूड करते हैं, तब हम लोग को क्या साइन देना है? ये साइन, वेरीजेस साइन बोला जाता है इसको। 1 by x तो है ना, इनवर्सली वेरी करता है किसका? जो ds by dt, जो सरफेस एरिया का जो रेट है वो वेरी करता है इनवर्सली किसके साथ? x के साथ। x क्या है? एज ऑफ द क्यूब। सो सरफेस, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है, सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली विथ एज ऑफ क्यूब। क्यूब का जो एज है उसके साथ वेरी करता है इनवर्सली, क्योंकि 1 by x निकला है कि नहीं? 1 by x निकला, यही तो ये वेरीज इनवर्सली का यहां पर ये साइन है। ओके, सो दैट मीन्स ये 1 by x सिग्निफाइज दैट द इनवर्स रिलेशन विथ ds by dt। ओके, तो इनवर्स रिलेशन, इसलिए वेरीज इनवर्सली, दिस वर्ड शुड बी यूज्ड। सेकेंड क्वेश्चन, a man 2 meters high works at a uniform speed। a man 2 meters high, मतलब एक इंसान है जिसका हाइट है 2 मीटर। ठीक है, a man 2 meters high works at a uniform स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड, ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है। दैट मीन्स 20 किलोमीटर पर आवर, एक ही स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, वर्किंग यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर पर मिनट, मतलब ये इसका स्पीड है, वॉकिंग स्पीड है। टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर tower 120 meter high, 120 meter high. Okay, at what rate is the approaching of the top? Okay, six meter per minute. Okay, away from the lamp post 5 meter high, away from the lamp post 5 meter high, 5 meter high. Okay, find the rate at which
the length of his shadow increasing. Find the rate at which the length of his shadow increases. मतलब यहां पर एक टावर है जिसके ऊपर ये लाइट लगा हुआ है, दैट मीन्स लैम्प पोस्ट. ओके, तुम यहां पर खड़े हो सपोज, ठीक है. तो एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप लोग यह प्रैक्टिकल एग्जामिन भी कर सकते हैं. आप लैम्प पोस्ट से जितना दूर जाएंगे, ठीक है. अब यहां पर ये सपोज मेरे पीछे लाइट है, ठीक है. अब मेरा शेडो कहां पर आएगा? पीछे की तरफ आएगा. मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा शेडो जो है वो पीछे की तरफ आएगा, ठीक है. दैट मीन्स ये लैम्प पोस्ट है, यहां पर आप खड़े हैं तो आपका शेडो कहां पर आएगा? पीछे की तरफ आएगा, है कि नहीं. एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में, है कि नहीं. तो यहां पर देखो, ये एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है. लैम्प पोस्ट का हाइट यहां पर 5 मीटर गिवन है. यहां पर आप खड़े हैं, आपका हाइट यहां पर क्या दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है. आप शेडो की पीछे की तरफ आएगा, दैट मीन्स ये है आपका शेडो, ठीक है. तो दैट मीन्स ये आप ज्वाइन करेंगे तो एक देखो ट्राइंगल शेप मिलता है. सो यहां से लेके यहां तक होगा शेडो, है कि नहीं, और यहां से लेके यहां तक होगा आपका और टावर के बीच जो डिस्टेंस है वो, ठीक है. अच्छा, ये टावर का लेंथ, ये आपका लेंथ, है कि नहीं. तो हियर नाम दे दो A B C D E. Here AB equals to 5 meter, CD equals to 2 meter. ओके, अच्छा यहां पर देखो टावर और इंसान के बीच, इंसान तो खड़ा है किसी न किसी जगह, फिर वो मूव कर रहा है. अब यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि टावर और इंसान के बीच जो डिस्टेंस है वो क्या क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है. डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. तो यहां पर लेट BD इक्वल्स टू x ले लेते हैं, और शेडो का लेंथ मतलब ED मतलब शेडो है ना, ये क्या होगा? y ले लेते हैं. दैट मींस ये x और ये y, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला गया देखो 2 meter high walks at a uniform speed 6 meter per minute away from the lamp post. मतलब लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है. लैम्प पोस्ट के सामने जो इंसान है वो लैम्प पोस्ट से दूर जा रहा है, तो जितना वो दूर जाएगा उतना ही शेडो का लेंथ बढ़ता रहेगा. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, आप देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली. लैम्प पोस्ट से कोई भी लाइट सोर्स से आप दूर जाएंगे जितना, आपका शेडो का लेंथ भी दिखना बढ़ता रहेगा. अब जितना सामने आएंगे टुवर्ड्स द लैम्प पोस्ट, then your shadow length will be decreased more. Okay, so जितना आप पास आओगे उतना शेडो का लेंथ कम होगा, जितना दूर जाओगे उतना शेडो का लेंथ ज्यादा होगा. That means यहां पर walks away मतलब दूर जा रहे हैं आप लैम्प पोस्ट से. That means ये शेडो का ये जो लेंथ है वो बढ़ता रहेगा. और ये भी डिस्टेंस, आप जितना दूर जाएंगे ये डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा. तो ये डिस्टेंस मैंने क्या लिया था? x लिया था. तो ये डिस्टेंस बढ़ रहा है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में. तो ये dx by dt नहीं है क्या? dx by dt क्या दिया हुआ है? 6 मीटर पर मिनट. यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में लेना है. कैसे समझ में आया? क्योंकि पर मिनट दिया हुआ है, दैट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट में आपको यहां पर डिफरेंशिएशन निकालना है. सो दैट मीन्स dx by dt, ये x यहां पर बढ़ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, इसलिए dx by dt. शेडो भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स dy by dt, ये आपको निकालना है. ठीक है, तो ये तो गया जो गिवन पार्ट्स है वो. अब हम लोग निकालेंगे क्या क्या मुझे यहां पर निकालेंगे. फाइंड द रेट ऑफ एट व्हिच द लेंथ ऑफ इज शेडो है. शेडो का लेंथ जो इंक्रीज हो रहा है उसका रेट निकालना है, दैट मींस dy by dt निकालना है कि नहीं. तो यहां पर देखो, यहां पर देखो दो ट्राइंगल्स निकलता है. ठीक है, हियर ABE, triangle ABE and triangle CDE are similar triangles.
सिमिलर ट्राइंगल्स। क्यों दो ट्राइंगल सिमिलर होगा? क्योंकि देखो ये ट्राइंगल, इसमें ये एंगल, ये एक ट्राइंगल, इसमें भी ये एंगल। दैट मीन्स बाय ए प्रॉपर्टी दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो उन लोगों का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो सेम होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इस ट्राइंगल का हाइट बाय इस ट्राइंगल का हाइट। दैट मीन्स ए बी बाय सी डी इक्वल्स टू इस ट्राइंगल का बेस मतलब यहां पर बीई बाय इस ट्राइंगल का बेस। दैट मीन्स डी। सो ए बी मतलब यहां पर 5 और ये 2 होगा, और बी मतलब यहां पर x प्लस वाई, और डी मतलब y। डायगोनल मल्टीप्लाई कर लो, 5y इक्वल्स टू ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y। तो दैट मीन्स 3y इक्वल्स टू ट्वाइस x। ठीक है, तो अब बोथ साइड dx बाई dt गिवन है, dy बाई dt निकालना है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई dt और 2 इंटू एक्स को अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में करूं dx बाई dt। dx बाई dt का वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में गिवन है। सो दैट मीन्स 3 इंटू dy बाई dt इक्वल्स टू 2 इंटू क्या होता है 6। दैट मीन्स 3 से ये काटो, सो dy बाई dt का आंसर निकलेगा 4 मीटर पर मिनट। दैट मीन्स शेडो का लेंथ इंक्रीजेस एट द रेट 4 मीटर पर मिनट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, A man is walking at the rate of 6.5 kilometer per hour. A man walking at the rate of 6.5 kilometer per hour. A man walking at the rate of 6.5 kilometer per hour. A man walking at the rate of 6.5 kilometer per hour. Okay, towards the foot of the tower, tower 120 meter high. Okay, 120 meter high. At what rate is he approaching? At what rate is he approaching the top of the tower? Approaching the top of the tower. When he is 5 meter away from the tower. When he is 5 meter away from tower. मतलब यहां पर भी सेम टावर एक है, एक इंसान खड़ा है, but here the differences between these two questions. In the last question the height of the man was given, but here the height of the man is not given. Here you can see height is not given, tower height is given, टावर का हाइट गिवन है, बट ये जो इंसान खड़ा है सामने उसका हाइट गिवन नहीं है। तो यहां पर हाइट अगर इंसान का गिवन नहीं है तो आप यहां पर हाइट को कंसीडर भी नहीं करेंगे। जैसे यहां पर देखो, पहले हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये टावर, ये फिर ये इंसान, क्योंकि उसका हाइट है, हाइट लेके हम लोग को डील करना था। तो यहां पर तो हाइट तो नहीं है, दैट मींस इसमें हम लोग पोजीशन लेंगे, मैन यहां पर खड़ा है कि नहीं। फिर सपोज ये टॉप ऑफ द टावर है, इसका लेंथ दिया हुआ है क्या है 120 मीटर। ये इंसान यहां पर खड़ा है, ये है टॉप, है कि नहीं, ये टॉप है, टॉप ऑफ द टावर। अब यहां से लेके इसका डिस्टेंस गिवन है क्या, नहीं है x, और इसका डिस्टेंस ये जो है गिवन नहीं है। ठीक है, क्यों यू लेना है, क्योंकि देखो यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है एट व्हाट रेट इज ही अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर। दैट मीन्स यहां पर dx बाई dt कहां पर ये देखो
द मैन वॉकिंग एट द रेट 6.5 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स द फूट, दैट मीन्स ये जो इंसान है वो यहां पर खड़ा था ना, अब वो ही स्टार्ट्स वॉकिंग, ओके, टूवर्ड्स द टावर, दैट मीन्स टावर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो टावर की तरफ जितना आएगा, टॉप के साथ ये जो डिस्टेंस है ये भी चेंज होगा ना, जितना वो सामने आएगा उतना ही ये जो लेंथ है ये लेंथ भी चेंज होगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो वही आपको निकालना है, फाइंड द रेट एट व्हिच ही इज अप्रोचिंग द टॉप ऑफ द टावर, दैट मीन्स ये y का चेंजेस जो आ रहा है वो आपको निकालना है। और क्वेश्चन में डी ये x का चेंज हो रहा है जो वो गिवन है 6.5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहाँ पर ये जो इंसान है वो टावर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स x का वैल्यू कम हो रहा है, यहाँ पर x का वैल्यू कम हो रहा है कि नहीं, दैट मीन्स x का चेंजेस जो है वो डिक्रीजिंग हो रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट। सो हियर नाम दे दो A B C, हियर BC इक्वल्स टू x एंड AC इक्वल्स टू y, गिवन AB इक्वल्स टू 120 मीटर, ठीक है। गिवन dx by dt, अब x का वैल्यू यहां पर कम हो रहा है, दैट मीन्स 6.5 किलोमीटर पर आवर, तो ठीक है, पर सामने एक माइनस साइन देना पड़ेगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग रेट है, टुवर्ड्स टावर की तरफ आ रहा है, दैट मीन्स ये जो लेंथ है वो कम हो रहा है ना, डिक्रीजिंग रेट है ये, सो एक माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। जब भी किसी भी चीज का वैल्यू कम होता रहा तो आपको माइनस साइन यूज करना है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। किसी भी चीज का वैल्यू अगर चेंजेस आ तो रहा है तो चेंजेस में दो ऑप्शन आता है, एक होता है या तो वैल्यू बढ़ेगा या फिर वैल्यू कम होगा। बढ़ेगा दैट मीन्स प्लस साइन यूज करोगे, अगर वैल्यू कम होता गया दैट मीन्स आपको माइनस साइन यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो टाइम के रेस्पेक्ट में ये जो x का वैल्यू है वो कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन यूज करना है। क्वेश्चन में आपको माइनस साइन नहीं देंगे, आपको माइनस साइन यूज करना है क्योंकि ये डिक्रीजिंग रेट है। फिगर्स समझ के प्रैक्टिकली आप सोचोगे, फिर उसके बाद ये माइनस प्लस यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट है इसलिए माइनस 6.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सो dx by dt ये गिवन है, ठीक है। अब जो है लास्ट क्वेश्चन में तो सिमिलर ट्राइंगल्स लेके तो हम लोगों ने कर लिया था, यहां पर तो सिमिलर ट्राइंगल्स तो नहीं है, यहां पर तो एक ही ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल है, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर यही क्वेश्चन है कि नहीं। तो वी नो दैट यहां पर कैसे हम लोग क्या बनाएंगे, देखो तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो समझ में आ रहा है। तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 120 होल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 120 होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। देखो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लिख सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे अगर टी के रेस्पेक्ट में करेंगे 2x dx by dt प्लस 120 होल स्क्वायर, और ये भी 2y dy by dt। अच्छा यहां पर बोथ साइड अगर टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो 120 होल स्क्वायर है वो तो जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स यहां पर 2x dx by dt और ये तो जीरो हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2y dy by dt। देखो ठीक है कि नहीं, ठीक है। इसको तुम एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 देके रख सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां पर dx by dt का वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है, बिठा देंगे, dy by dt यहां पर निकालेंगे, है नहीं, यहां पर dy by dt निकालना है क्योंकि टॉप यहां पर जितना, देखो यहां पर ये टावर है, सपोज ये लाइट सोर्स है और मैं जितना उसका सामने जाऊंगा मेरे सर से टावर का टॉप का डिफरेंस भी कम होता जाएगा, है कि नहीं। मैं ये टावर है, मैं यहां पर खड़ा हूं, जितना मैं सामने जाऊंगा उतना ही टॉप के साथ ये जो डिफरेंस है ये कम होता रहेगा ना, है कि नहीं। तो यही आपको निकालना है, dy by dt निकालना है, और ये भी डिक्रीजिंग ही है कि नहीं। तो है कि नहीं, देखो टॉप के साथ आपका जो पोजीशन है वो भी कम होता रहेगा, जो डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा dy by dt, क्योंकि आप सामने जा रहे हैं, जितना पीछे जाओगे उतना ही ये डिस्टेंस भी बढ़ता रहेगा, है कि नहीं। तो यहां पर
dx बाई dt का वैल्यू क्या है, यहां पर 2 कैंसिल कर दो, तो यहां पर x dx बाई dt का वैल्यू कितना है 6.5। अच्छा ये तो किलोमीटर में है ना, बाकी सब क्वेश्चन तो मीटर में है, तो किलोमीटर में तो रखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर तो ये मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई मारो और डिवाइड यहाँ पर किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो आवर को भी मिनट में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 60 से डिवाइड कर दो। ओके, और ये y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब वो ये y का वैल्यू कहां से निकालेंगे, x का वैल्यू भी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये टावर व्हेन ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, दैट मीन्स ये डिस्टेंस 5 मीटर लास्ट दिया हुआ है, मतलब तुम्हें ये y का चेंजेस निकालना है जब ये डिस्टेंस 5 मीटर हो, तो दैट मीन्स लास्ट पोजीशन में आप x इक्वल्स टू 5 इसमें बिठा सकते हैं, बट y का वैल्यू तो गिवन नहीं है, ये y का वैल्यू कहां से निकालेंगे, देखो यहां पर हियर फॉर x इक्वल्स टू 5, फॉर x इक्वल्स टू 5, x स्क्वायर प्लस 120 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर, so that means 5 square plus 120 square equals to y square, that means 25। क्वेश्चन में थोड़ा ये करेक्शन करो, क्वेश्चन में ये 120 मीटर नहीं 12 मीटर है, 12 मीटर, ठीक है, ये 12 मीटर है, क्वेश्चन में ये 12 मीटर करो, 12। ओके, सो ये 12 मीटर होगा, ठीक है, 12 मीटर, दैट इज 144 इक्वल्स टू y स्क्वायर, that means y square equals to 169, that is 13 square, that is y equals to 13। क्वेश्चन में 120 मीटर नहीं है, 12 मीटर है, 12 मीटर करो, ठीक है, तो y equals to 13 मिल जाता है, that means when x equals to 5 then y equals to 13। तो जब आप x का वैल्यू 5 पुट करेंगे किसी भी जगह हो, तब आप y का वैल्यू 13 पुट कर सकते हैं, तो that means यहां से so now x into 6.5 into 1000 by 60 equals to y मतलब 13 into dy by dt का वैल्यू तो हम लोग को निकालना है, और x का वैल्यू भी 5 है। बस अब यहां पर ये करके ये 10 कर दो, ठीक है, हो गया, ये 5 है, ये 3 है, ठीक है, so that means 5 into 5 into 5 into 65 by 3, okay, equals to 13 into dy by dt। तो यहां पर ये, so dy by dt equals to 125 by 3 मीटर पर मिनट, ठीक है, और यहां पर एक माइनस साइन आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि dx by dt का वैल्यू क्या है था, माइनस का था, दैट मींस यहां पर एक माइनस आएगा, dy by dt का आंसर भी एक माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहां पर जितना आप टावर के सामने जा रहे हैं उतना ही ये वाला टॉप के साथ आपका जो डिस्टेंस है वो भी कम होता रहेगा, तो कम होता रहेगा, दैट मींस माइनस साइन आएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, जितना कम होगा माइनस साइन यूज करोगे, बढ़ेगा प्लस साइन यूज करोगे, ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट। फिर और एक क्वेश्चन लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। सो दैट मीन्स ये क्वेश्चन में जब व्हेन के बाद कुछ भी लिखा जाए, व्हेन के बाद कुछ भी आपको दिया जाएगा, दैट मीन्स ये लास्ट में आपको बिठाना है। यहां पर x का वैल्यू 5 अगर मैं पहले ही बिठा देता तो यहां पर तो ये dx by dt dy by dt ये सब निकलता ही नहीं, है नहीं, ये व्हेन का बाद जो, दैट मीन्स इट इज द कंडीशन, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द आंसर व्हेन दिस, when, so that means at first you have to calculate this thing, and in the last part you need to put the given condition here, okay, on that basis you will have to find the question, that means you will find the result, okay। now next question jao, a ladder 5 meter long, a ladder 5 meter long, a
ladder 5 meter long leaning against a wall. A ladder 5 meter long leaning against a wall. Okay, against a wall. The bottom of the ladder is the bottom of the ladder is pulled along the ground. Pulled along the ground. Okay, pulled along the ground away from the wall. Away from the wall. At the rate 2 meter per second. 2 meter per second. Okay. How first the height of the wall? How first the height of the wall is decreasing. When the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. 4 meter away from the wall. That means ये एक वॉल है, ठीक है। अब वॉल में, ठीक है, ये तो बेस है, ऐसे है, ये वॉल है, इसके ऊपर एक सीढ़ी ऐसे लीनिंग, ठीक है, सीढ़ी ऐसे लगा हुआ है, एक सीढ़ी, ये है सीढ़ी लगा हुआ है। अब सीढ़ी को क्या कर रहे हैं, सीढ़ी का ये जो ये फुट ऑफ द लेडर, ठीक है ना, तो सीढ़ी को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो जितना मैं सीढ़ी का ये जो फुट है, उसको अगर मैं पीछे की तरफ पुल करूं तो ये जो टॉप पोर्शन है वो ये ऐसे नीचे आएगा ना, देखो जितना मैं खींचूंगा उतना ही वो ऐसे नीचे आएगा, है कि नहीं। दैट मींस फिगर अगर मैं ड्रॉ करूं, ये वॉल है और ये एक लेडर है कि नहीं। अब ये है लेडर का फुट, ये है वॉल, ठीक है। अब इसको अगर मैं जितना पीछे की तरफ लेके जाऊंगा उतना ही ये जो टॉप पोर्शन है वो नीचे की तरफ आएगा। सो दैट मीन्स इसको खींच के अगर मैं पीछे की तरफ लेके जाऊं, दैट मीन्स ये डिस्टेंस बढ़ेगा, पीछे की तरफ लेके जाऊंगा दैट मीन्स ये डिस्टेंस बढ़ेगा, बट ये डिस्टेंस कम होता रहेगा, है कि नहीं। तो यही यहां पर बोला गया कि यहां पर एक लेडर 5 मीटर लॉन्ग है, दैट मीन्स ये 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, दैट मीन्स ऐसे रखा हुआ है, लीन करके रखा हुआ है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं हम लोग, इसको पुल कर रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स इसको जो खींच के पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं ना, इसका स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये डिस्टेंस अगर x हो तो dx/dt क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि यहां पर ये डिस्टेंस x है तो पीछे की तरफ पुल कर रहे हैं, दैट मीन्स ये x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो दैट मीन्स ये क्या डिनोट करता है, dx/dt नहीं है क्या, dx/dt। तो जितना मैं पीछे की तरफ खींच रहा हूं उसको, ये जो लेंथ, ये जो टॉप पोर्शन है वो ऐसे ऐसे गिरता रहेगा, दैट मीन्स ये कम होता रहेगा। तो इसका y ले लेते हैं, है कि दैट मीन्स dy/dt निकालना है मुझे। देखो हाउ फर्स्ट द हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर, अच्छा व्हेन के बाद जो पार्ट है वो बाद में सोचेंगे। यहां पर बोला गया कि ये जो y वाला ये जो पार्ट है वो तो डिक्रीज होता रहेगा, तो इसका रेट निकालना है और इसका गिवन है, ये पीछे की तरफ पुल कर रहे हो, दैट मीन्स ये x इंक्रीज हो रहा है। सो लेट नाम दे दो ABC, हियर AB equals to y, BC equals to x,
राइट। गिवन क्या है, dx by dt इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स यहां पर प्लस साइन यूज करना है, क्योंकि x तो यहां पर बढ़ रहा है, जितना ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा उतना ही x इंक्रीज होगा, दैट मीन्स प्लस साइन यूज करना है। dx by dt इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। dy by dt मुझे निकालना है, dy by dt निकालना है कि नहीं। बस अब यहां पर देखो, यहां पर भी देखो x और y और 5 आ रहा है, यहां पर भी देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, क्योंकि कोई भी किसी भी चीज का वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन तो फॉर्म करना है कि नहीं। इक्वेशन तो फॉर्म यहां पर मुझे एक ही चीज दिखाई दे रहा है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। जस्ट राइट द पाइथागोरस थ्योरम। सो 5 मीटर, ठीक है। सो फ्रॉम द ट्राइंगल ABC, from the triangle ABC, from the triangle ABC, x square plus y square equals to 5 square. So twice x, अब t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो करना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस x और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx by dt, ट्वाइस y dy by dt इक्वल्स टू 20, और ये तो 0 हो जाएगा। इस पे इक्वेशन नंबर 1 लिख रखो। तो dx by dt का वैल्यू गिवन है, पता है मुझे। x का वैल्यू व्हेन के बाद x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो एक क्वेश्चन में लास्ट पार्ट में दिया गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल इंक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दैट मीन्स ये 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अगर इस पॉइंट का पोजीशन 4 मीटर अवे हो, दैट मीन्स ये x का वैल्यू 4 हो, तब dy by dt का वैल्यू निकालना है। सो ऐसे लिखो, व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन y का वैल्यू भी निकालो, क्योंकि y का वैल्यू भी तो चाहिए। देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स, इसको इक्वेशन नंबर 2 देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, that means y square equals to 25 minus 16 equals to y square equals to 9 मतलब 3 स्क्वायर, तो y का वैल्यू 3 होगा। प्लस माइनस तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लेंथ तो यहाँ पर माइनस नहीं ले सकते, नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ पर यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि y जो है वो लेंथ है कि नहीं। तो y का वैल्यू 3 है, कब, जब x का वैल्यू 4 हो। तो बिठा दो x के जगह 4, y के जगह 3, dx by dt तो क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dt। सो फ्रॉम मीन्स यहां पर y का वैल्यू, तो सो बेटा तो फ्रॉम टू, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे dy by dt दैट मीन्स ये निकालना है, डिक्रीज हो रहा है। सो फ्रॉम 2 इंटू x, 2 इंटू x मतलब क्या है 4, इंटू dx by dt, dx by dt कितना गिवन था, dx by dt कितना, dx by dt कितना गिवन था 2 मीटर पर सेकेंड, 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई, वाई मतलब कितना है 3, dy by dt इक्वल्स टू 0, बस। सो dy by dt इक्वल्स टू माइनस 16 by 6, तो माइनस 8/3 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन आ गया ना, क्योंकि ये माइनस साइन डिनोट करता है y का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जितना तुम पुल कर रहे हो उतना ही ये पोजीशन जो वो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा दैट मींस y का वैल्यू कम होता रहेगा। ये माइनस साइन वही डिनोट कर रहा है कि y का वैल्यू कम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, ये सब बहुत मजा आता है, ये सब क्वेश्चन है कि नहीं, कितना मजा आता है। देखो ये सब क्वेश्चन करने में बहुत यूजफुल क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, द टू इक्वल साइड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, two equal sides of an isosceles triangle, two equal sides of isosceles triangle
Isosceles triangle with fixed base B, with fixed base B, बेस यहां पर फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड बेस B आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आर डिक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per second. 3 centimeter per second. Okay. How first is the area decreasing? How first the area किसके एरिया? Isosceles triangle के एरिया, obviously. How first the area decreasing? मतलब एरिया डिक्रीज होगा, इसका रेट निकालना है. When two equal sides are equal to base. Okay? That means ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विथ फिक्स्ड बेस, एबीसी नाम दे दो. मतलब ये जो फिक्स्ड बेस, इसका लेंथ क्वेश्चन में कितना का दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते उसको, बेस का लेंथ चेंज नहीं कर सकते. ये जो इक्वल साइड्स हैं इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं. लेट द इक्वल साइड्स आर एक्स सेंटीमीटर. दैट मीन्स जो आइसोसेलेस ट्राइंगल को जो इक्वल साइड्स हैं उसको हम लोगों ने एक्स ले लिया है. अब क्वेश्चन में बोला गया है, देखो, द टू इक्वल साइड्स, मतलब ये दोनों साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस आर डिक्रीजिंग. दैट मीन्स ये जो लेंथ है ना दोनों, वो दोनों लेंथ डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स ये लेंथ भी कम हो रहा है, ये लेंथ भी कम हो रहा है. दैट मीन्स ट्राइंगल का साइज भी छोटा हो रहा है, बट बेस सेम रहेगा. बेस यहां पर चेंज नहीं होगा, बेस फिक्स्ड है. बट ये दोनों लेंथ, ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है. तो कम होने से ट्राइंगल छोटा होता रहेगा, ट्राइंगल छोटा होगा, दैट मीन्स उसका एरिया भी छोटा होता रहेगा, है कि नहीं? तो वही आपको एरिया का चेंजेस निकालना है. गिवन क्या है? देखो, जो टू इक्वल साइड्स हैं वो चेंज हो रहा है, ठीक है. रेट क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dx by dt, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल का है जो इक्वल साइड्स है वो डिक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स dx by dt माइनस साइन यूज करना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीज, माइनस साइन यूज करना पड़ेगा. dx by dt. ओके, नाउ आपको निकालना क्या है? एक एरिया जो चेंज हो रहा है ना, एरिया इज डिक्रीजिंग, इसका रेट तुम्हें निकालना है. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया जो है वो कैसे निकालते हैं? एक हाइट इधर ड्रॉ करते हैं. अब आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम लोग जानते हैं, अगर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये जो लाइन है वो बेस को बाइसेक्ट करता है. दैट मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. दैट मीन्स ये लेंथ होगा यहां पर b/2, ये लेंथ भी होगा यहां पर b/2, ठीक है, b/2. अब a इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है. अब जो है a इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, तो मतलब b है, ये पूरा लेंथ तो b है, b इंटू हाइट मतलब ये. अब इसका कैसे निकालेंगे? यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड में एक काम करो, इस पॉइंट का एक नाम दे दो ABC, इसका नाम तुम D दे दो. तो ABD ट्राइंगल में x² प्लस b/2 होल स्क्वायर, मतलब सॉरी, बेस स्क्वायर b/2 होल स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर मतलब AD² इक्वल्स टू x². सो यहां से AD मतलब क्या निकलता है? रूट ओवर x माइनस b/2 होल स्क्वायर. AD है कि नहीं? सो यहां पर देखो AD, तो ये हाइट है, तो दैट मींस इसका लेंथ क्या है? रूट ओवर ये x² है, x² माइनस b² by 4.
ठीक है नहीं, यहां पर साइड में ये करके रखो, जरूरत है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, हो गया। अब जो है मुझे क्या निकालना है, एरिया का डिक्रीजिंग रेट निकालना है, मतलब डी ए बाई क्या डी टी, टाइम के रेस्पेक्ट ऑब्वियसली। तो यहां पर बोथ साइड टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हाफ बी, ये तो कांस्टेंट है पूरा बाहर, इनटू ये रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, 2 रूट एक्स के जगह में एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, फिर डीडीटी ऑफ क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, ये रूट के अंदर जो टर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4, है नहीं, ठीक है। पहले तो रूट का होगा 1/2 रूट दिस, फिर रूट के अंदर जो टर्म होगा वो आपको डिफरेंशिएट करना है, ओके नाउ। तो यहां पर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू हाफ इंटू बी इंटू 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 डीडीटी ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पर बोलो तो डीडीटी ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर्मूला क्या बनता है, अच्छा यहां पर डीडी एक्स होता तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ट्वाइस एक्स, ठीक है। डीडीटी ऑफ एक्स स्क्वायर वो भी ट्वाइस एक्स, बट यहां पर टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, सो डी एक्स बाई डी टी एक लिखना पड़ेगा, तो यहां पर भी सेम 2x dx बाई डी टी हो गया। सो यहां पर डीडीटी ऑफ बी स्क्वायर बाई 4 तो 0 है, बी स्क्वायर बाई 4 तो कांस्टेंट है ना, बी फिक्स्ड बेस बोला गया ना क्वेश्चन में, बी फिक्स्ड बेस है, दैट मींस बी इज फिक्स्ड, बी इज कांस्टेंट हियर, ओके, बी इज नॉट ए वेरिएबल। तो यहां पर 2 काट दो, ठीक है। बस अब जो है व्हेन, देखो लास्ट पार्ट में जाओ, व्हेन के बाद, व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू बेस। अच्छा 2 इक्वल साइड्स, हमने लेंथ क्या लिया था क्वेश्चन में, लेट द 2 इक्वल साइड्स x सेंटीमीटर, x लिया था ना, किसके साथ इक्वल, 2 इक्वल साइड्स इक्वल टू बेस, मतलब x के साथ कौन सा इक्वल है, बेस इक्वल है, दैट मीन्स बेस का यहां पर लेंथ क्या है, b है ना, दैट मीन्स व्हेन, ऐसे देखो व्हेन x इक्वल्स टू b, बस अब x का वैल्यू यहां पर पुट कर दो और dA बाई dt का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। बस सो dA बाई dt ऐसे लिख लो, व्हेन x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू हाफ इंटू b इंटू 1 बाई रूट b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 इंटू b इंटू dx बाई dt मीन्स 3 माइनस 3 नॉट ओनली 3। बस अब निकाल लो, जो आंसर निकलेगा वही होगा यहाँ पर एरिया का डिक्रीजिंग रेट। ऑब्वियसली अब ट्राइंगल का साइड्स का लेंथ अगर कम होता रहा तो ऑब्वियसली एरिया भी छोटा होता रहेगा, साइज भी छोटा होता रहेगा ना ट्राइंगल का, तो साइज जितना छोटा होगा एरिया भी उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर क्या निकला, देखो बी स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बाई 2 इंटू यहां पर क्या होगा देख लो 1 बाई रूट 3b स्क्वायर बाई 4 माइनस 3b स्क्वायर बाई 2 इंटू ये 4 तो रूट के अंदर है ना, रूट के बाहर आएगा तो 2 आएगा और ये हो जाएगा रूट 3b, 2 कैंसिल, ये रूट 3 होगा, b कैंसिल, दैट मीन्स माइनस रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, एरिया का रेट पर सेकेंड, ये होगा dA बाई, देखो माइनस निकला है ना, ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि एरिया का जो एरिया भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो ये देखो कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। Okay, so this application of differentiation chapter, the whole chapter is very much important and very interesting also. So if you just want to perceive the sufficient knowledge from this chapter, then you should have the actually practical knowledge. Okay, just everything should be related, should be correlated with the daily activities. Okay, then I think everything and every concept will be cleared. Every concept will be like a fluid. Okay, so
in the next video, just in this video, that's enough. The most important questions were solved, and these are all actually important for the board. आग बंद करो और इम्पोर्टेंट मार्क करो ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, यहां से ही आएगा बोर्ड में. ओके, और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे. तो इफ यू लाइक माई वीडियोज, इफ यू लाइक माई लेक्चर्स, देन सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, एंड like and share my channel as well. Okay, thank you very much for joining my classes. Bye. Jai Hind.